Welcome, my dearly beloved brothers and sisters. How are you all today? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? It's been a long time since we last met. लंबा समय हो चुका है पिछले बार मिलकर। 7 days. 7 दिन हो चुका है। Very long. बहुत लंबा। I'm sure you remember what we studied last week. मैं निश्चित जानता हूँ पिछले हफ्ते हमने जो अध्ययन किया है याद होगा। In case you have forgotten, अगर आप भूल गए हो, here's a recap of what we studied last week. पिछले हफ्ते के अध्ययन का थोड़े आप देखें। Walk justly before God, प्रभु के सामने न्याय में चलें, to love mercy, दया से प्रेम रखें, and to walk humbly before God. प्रभु के सामने नम्र चलें। So these are the righteous acts that a believer does, and it becomes our fine linen garment. यही एक धर्मी कार्य जो विश्वासी करते हैं, जो हमारे लिए सूक्ष्म सन वस्त्र बनता है। And the Bible tells us something further about the garment. इस वस्त्र के विषय में बाइबल और चीज बताती है। Revelation chapter 19 verse 8 says that the garment is not only a fine linen but it's also clean and white. प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 8 पद जो है, ये सिर्फ सूक्ष्म सन वस्त्र ही नहीं कहता है, वो शुद्ध और सफेद कहता है। You can find two doubles here. यहाँ पे दो जुड़वी बात को देख सकते हैं। Firstly, we saw previously that the fine linen garment composed of two parts. पहला हमने देखा ये सूक्ष्म सन वस्त्र जो है दो भाग में बनाया गया है। Garment of salvation and robe of righteousness. उद्धार का वस्त्र और धार्मिकता का वस्त्र। Two parts to the fine linen garment. सूक्ष्म सन वस्त्र का दो भाग। Now we see another double here. अब एक और जुड़वा देखते हैं। The fine linen is clean and white. ये सन वस्त्र जो है शुद्ध और सफेद है। We can also ask how to be clean, how to be white. आप पूछ सकते हैं कि कैसे हम शुद्ध हो सकते हैं, सफेद हो सकते हैं। Okay, turn your Bibles now to the book of 2 Corinthians chapter 7. आइए अब जो है हम दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय खोलेंगे। We are going to read one scripture that will answer this question. हम एक वचन पढ़ेंगे जो इस सवाल का उत्तर देगा। Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Read the scripture again. इस वचन को फिर से पढ़िए। It says, cleanse yourselves from all filthiness of the flesh and spirit. और वो कहता है शरीर और आत्मा के सारे मलिनता से आपको शुद्ध करें। Wow, so now you know that the garment that the bride wears is white and clean. अब आप जान लेते हैं कि जो है दुल्हन जो वस्त्र पहनती है वो शुद्ध और सफेद है। The two words describes two important aspects in the bride. और ये दो शब्द जो है दुल्हन की दो महत्वपूर्ण बातों को विवरण देता है। Please remember one thing very carefully. दया करके एक बात को याद रखिए। Many wonderful, godly, spiritual Christians are waiting to be caught up to meet the Lord in the air. बहुत से जो है ऐसे अद्भुत मसीह लोग जो है इंतजार में हैं मध्य आसमान में उठाए जाने के लिए। But many Christians wrongly think like this. मगर बहुत से मसीह लोग गलत सोचते हैं इस प्रकार, that all Christians will be caught up to meet the Lord in the air. सारे मसीह जो है मध्य आसमान में उठा लिए जाएंगे प्रभु से मुलाकात करने के लिए। Such an event is very popularly called the rapture. और इस घटना को जो है उठाए ले जाना के शब्द से कहते हैं। But that is a very wrong understanding. मगर ये बहुत ही गलत समझ है। Because the Holy Bible tells us very clearly. पवित्र बाइबल हमसे साफ कहता है In Revelation chapter 19 verses 7 to 9. प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 से 9 पद। The bride has made herself ready. दुल्हन अपने आप को तैयार कर चुकी है। And to her was given this garment to wear. और उससे ये वस्त्र दिया गया कि पहनने के लिए। So you see the very important criteria there. यहाँ पे जो महत्वपूर्ण शर्त को आप देख सकते हैं। To whom was this garment that is clean and white given? किसके लिए ये जो शुद्ध और सफेद वस्त्र दिया गया है? To the person who has made themselves ready. उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने आप को तैयार कर चुके हैं। So that tells us very clearly और ये हमें स्पष्ट बताता है that the garment will only be given to those who made themselves ready and not to everyone. और जिन लोगों ने अपने आप को तैयार रखे गए हैं उन्हीं के लिए दिया जाता है ये वस्त्र, ना कि सबके लिए। And the other warning is given in
Revelation 19:9. और एक और चेतावनी जो है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 9 में दिया गया है। Blessed are all them who are invited to the marriage supper of the Lamb. और मेमने की उस जो है विवाह की बोझ में बुलाए हुए धन्य हैं। Look at the words there. वहां उन शब्दों को देखें। Blessed are they who are called. धन्य वे जो बुलाए गए हैं। Or it can be said like this. या इस प्रकार कह सकते हैं, Blessed are they who are invited. वे लोग जिनको निमंत्रण मिला है वो धन्य हैं। Let me tell you one thing. एक चीज मैं बताऊं, In the year 1991, the Lord called me to fast for 3 days. 1991 में प्रभु ने 3 दिन उपवास रखने के लिए कहा। On the third day, as I was fasting and praying, जब तीसरे दिन मैं उपवास रख के प्रार्थना कर रहा था, I saw a vision. मैंने एक दर्शन देखा। In the vision, I saw the beautiful starry sky. और मैं वहां पे एक ऐसे सुंदर आसमान देखा तारों के साथ। I saw all the vast star systems, galaxies. वो सारे तारे गणों को जो है और जो भूमंडलों को देखा। In the blackened sky, they all look like beautiful little lights twinkling here and there. और काले अंधेरे उस आसमानों के बीच में ये सब बहुत ही सुंदर चमकता हुआ दिखाई दिया। So as I was looking at them, जब मैं इसे देख रहा था, suddenly they all exploded. अचानक ये सब विस्फोट होने लगा। One by one, they all exploded. एक एक करके सब विस्फोट होने लगा। I was shocked. अचंभित हो गया। Suddenly, the whole universe was black. अचानक संपूर्ण भूमंडल और ब्रह्मांड अंधेरा हो गया। Suddenly, from one corner in the universe, ब्रह्मांड में से अचानक एक कोने से a door opened एक दरवाजा खुला, and light seeped out from that place. वो स्थान से रोशनी निकल के आया। And I saw into that open door. मैं इस खुले द्वार में देखने लगा And I saw the beautiful Shekinah glory of God within it. और उसके अंदर परमेश्वर के सुंदर और शकीना महिमा देखा। And in a little while, थोड़े ही समय में a huge ball of fire came out from the door and stood outside. और एक बड़े जो आग के गोला जो है उस दरवाजे के अंदर से बाहर आकर खड़ा हुआ। The glory that came out from the ball of fire brightened up the whole universe. आग की गोले से वो तेज जो निकला वो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी कर दिया। And as I looked closer into the ball of fire, जब मैं उस आग के गोले को करीब से देखा, I saw the figure of a person within the ball of fire. और उस आग के गोले के अंदर एक चेहरा को मैं देखने पाया। And I saw closer. मैं और करीब से देखा, It was the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह हैं। He was standing as a majestic, gigantic being. और एक जो है बड़ी महिमापूर्ण ऊंचे कद में वो खड़े हुए थे। And from his right side and from his left side stood many, many saints. और उसके दाएं और बाएं तरफ में बहुत सारे जो है संत लोग खड़े थे। All the redeemed people from the earth. जो कोई इस पृथ्वी से छुड़ाए हुए लोग थे। And all around him stood billions and billions of angels. उनके चारों तरफ जो है करोड़ों करोड़ों जो है स्वर्गदूत खड़े थे। So when you look at them as a complete whole, जब इन सब चीज को एक साथ देखें, it looked like a gigantic ball of fire. और ये देखने में एक बड़ी आग की गोले के समान दिखाई दिया। And when the light of glory shined and brightened up the universe, जब वो ज्योति का तेज जो है पूरी ब्रह्मांड को रोशन कर दिया, a trumpet sounded. एक तुरही फूका। And when the trumpet sounded, जब तुरही की आवाज आई, I saw the words written in the sky. मैं आसमान में एक शब्द लिखा हुआ देखा, Time will delay no longer. और समय नहीं है, I'm coming soon. जल्द ही आ रहा हूं। Then after that, उसके बाद then a hand wrote a passage of scripture in the sky. और एक हाथ जो है एक पदों को जो आसमान में लिखा। Revelation 19:7-9. प्रकाशित वाक्य 19:7-9। And the word of the Lord came unto me saying, प्रभु का वचन मेरे पास आया और कहा, that portion is specifically for the Christians. और ये भाग नियुक्त तरीके से मसीहों के लिए है। The bride had made herself ready. दुल्हन अपने आप को तैयार कर चुकी है। And to those who make themselves ready, जो अपने आप को तैयार करते हैं, only to them will the gown be given. उन्हीं के लिए वो वस्त्र दिया जाएगा। Then only such will be invited to the marriage supper of the Lamb. और वही लोग जो मेमने की वो विवाह की बोझ में स्वागत किए जाएंगे। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बेटे बेटियां,
It is very, very vital that we should get ready. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम तैयार हो जाएं, Then this garment will be given. तब ये वस्त्र दिया जाएगा। The garment, the Bible says, is clean and bright. और ये वस्त्र कहता है शुद्ध और सफेद है। It speaks about two kinds of cleanliness. और ये दो प्रकार की शुद्धता के विषय में बात करता है। Let's look at them. हम उसे देखें। Firstly, clean. पहला साफ। What does clean means? साफ का मतलब क्या है? It refers to external cleanliness. और वो बाहर रूप की सफाई के बारे में बताता है। It refers to the body. वो शरीर के बारे में बताता है। Every day we take a bath हर दिन हम नहाते हैं। and we use different kinds of soap for our body. अलग अलग साबुन इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर के लिए। Once I read in the scriptures वचनों में एक बार मैंने पढ़ा that Esther used olive oil to beautify herself. एस्थर ने जैतून के तेल को इस्तेमाल किया अपने आप को सुंदर करने के लिए। She looked fair and beautiful. वो बहुत ही गोरी और सुंदर दिखती थी। So I thought to myself, मैं अपने आप के बारे में सोचा, by using olive oil, a person's skin can become fair and beautiful. एक जो जैतून के तेल इस्तेमाल करने से एक व्यक्ति की शरीर गोरे और सुंदर हो जाते हैं। So when I was in Israel, I bought olive soap. और इसलिए जब मैं इसराइल में था तो मैं जैतून का साबुन खरीदा। Every day I used the olive soap to rub on my skin. रोज मैं जैतून के साबुन अपने जो है शरीर में रगड़ा। After 6 months of using this soap, 6 महीने साबुन का इस्तेमाल करने के बाद look at my skin now. मेरे अभी शरीर को देखिए। Doesn't look fair and beautiful like Esther. क्या ये एस्तर के समान सुंदर और सफेद नहीं दिखाई दे रही? Even this morning as I was bathing, जब इस सवेरे में नहा रहा था, as I was using this olive soap, I pondered about that. मैं जब इस जैतून के साबुन का इस्तेमाल कर रहा था, मैं सोचने लगा। For the last 6 months, I'm using this olive soap every day. पिछले 6 महीने से इस जो जैतून के साबुन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। How come there's no change in my skin? क्यों मेरे शरीर में कोई बदलाव नहीं है? And how is it that Esther became fair and beautiful? कैसा जो है एस्तर जो है गोरी और सुंदर हो गई? As I was meditating such and bathing at the same time, मैं अध्ययन करते समय जैसे मैं नहा ही रहा था, then I realized one thing. तब मैं एक चीज एहसास किया। It cannot just be all the natural spices that Esther had used. और ये सिर्फ इतना जो प्राकृतिक जो चीजों को सामग्री को उस इस्तेमाल करी थी, There was something else that made her fair and beautiful before the eyes of the king. मगर कुछ और ऐसी बात थी जो एस्तर के ऊपर लगी गई थी जो राजा के सामने गोरी और सुंदर नजर आए। That was another ingredient. और एक और सामग्री है वो, Very special ingredient. बहुत ही खास है वो। By applying that ingredient, उससे जब अपने ऊपर लगाते हुए she became so fair and beautiful. वो बहुत ही सुंदर और गोरी हो गई। You know, every time when I'm flying in the plane, जब भी मैं हवाई जहाज में उड़ता हूँ, I used to look at the in-flight sales magazine. मैं जो है हवाई जहाज के अंदर की जो पत्रिका होता है बेचने के बारे में उसे देखता हूँ। 3/4 of those magazines are filled with perfumes and different kinds of cosmetic products. 1/4 भाग जो है उसमें सिर्फ जो सुगंधित वर्गों को और जो श्रृंगार वस्तुओं से भरा रहता है। And there are all kinds of cosmetic products to make one fair and beautiful. ये सारे श्रृंगार के वस्तु एक व्यक्ति को सुंदर और सफेद बनाने के लिए है। I really doubt if all it will work. मैं संदेह करता हूँ कि क्या ये सब कार्य करता है कि नहीं। But I know of this other ingredient that Esther used that really made her fair and beautiful. मगर जो दूसरी जो सामग्री मैं जानता हूँ जो इससे एस्तर ने इस्तेमाल करी जिस वजह से वो गोरी और सुंदर हो गई, वो जरूर काम करेगा। Do you want to know? क्या आप जानना चाहते हैं? I found out what it is. मैंने पहचान लिया कि वो क्या है। It is the grace and favor of God. और वो प्रभु का अनुग्रह और दया है। That's the ingredient you need. और वही सामग्री आपको जरूरत है। Even though you may look dark and ugly, हो सकता है आप बहुत ही काले और जब बदसूरत नजर आए, but when that grace and favor of God rests, जब वो अनुग्रह और एहसान प्रभु का आप पर आता है, it will make the beholder to see you fair and beautiful. अब वो आपको ऐसे बना देता है कि आप जो है गोरे और सुंदर नजर आए। So for the grace and favor of God to rest upon us, और प्रभु की अनुग्रह और एहसान हम पर आने के लिए we must live a clean life. हमें एक शुद्ध जीवन व्यतीत करना है। When the priesthood was established by God through the prophet Moses, जब जो याजकपन के कार्य प्रभु ने जो मूसा के द्वारा स्थापित किया, the Lord God gave clear instructions how they should function
to the prophet Moses. और मूसा को जब प्रभु ने अगुवाई दिया था किस तरीके से उन्हें कार्य करना है। And before the priests can function or begin their ministry, और ये याजक लोग अपने कार्य और सेविकाई शुरू करने से पहले the Holy Bible says in Exodus chapter 40 verse 12 पवित्र शास्त्र जो निर्गमन 40 उसके 12 पद में कहता है that they must be cleansed. उन्हें शुद्ध होना है। So the prophet Moses had them wait outside the tabernacle और इसीलिए भविष्यवक्ता मूसा ने उन्हें बाहर किया तंबू से, because there was the lever of washing. और वहां पे एक स्थान था उन्हें शुद्ध करने का, धोने का। He took the water from there and washed Aaron and his sons. और वहां से उस पानी को निकाला, हारून और उसके बेटों को शुद्ध किया, नहलाया। And after they were washed clean, जब वो धोकर शुद्ध किए गए, so you are coming before the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आ रहे हैं। Even the body must be clean. आपके बदन भी शुद्ध होना जरूरी है। The priests were instructed और याजकों को अगुवाई दिया गया, before they enter into the tabernacle, वो तंबू में प्रवेश करने से पहले they must always wash their hands and their feet. वो लगातार जो है उन्हें अपने हाथों को, पाँव को धोना है। But you may think like that. आप ऐसे सोच सकते हैं, Many Christians who now follow all these hyper grace false doctrines, और जबकि बहुत सारे मसीह लोग जो अनुग्रह की ऊंचाई की सिद्धांत को पालन करते हैं, by the way, there is a true grace of God. सच्चाई में एक सच्ची अनुग्रह है, But this hyper grace is a false teaching from the devil. और ये जो ऊंची अनुग्रह की शिक्षा शैतान की ओर से झूठी शिक्षा है। Please remember, there is a true grace of God. ध्यान से देखिए कि एक सच्ची अनुग्रह है, But this hyper grace that teaches that whatever you do, whatever lifestyle you live, everything is all right. और जो है ऊंची अनुग्रह ये सिखाते हैं जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ आप हैं, वो सब ठीक है। That teaching is very, very wrong. और वो शिक्षा बहुत ही गलत है। If you are in such a church, अगर आप ऐसे कलीसिया में हो, I tell you today what the second angel of Revelation chapter 14 said. और जो दूसरे स्वर्गदूत ने प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में जो कहा है, मैं बताता हूँ। Come out of Babylon. बाबिलोन से निकला, Come out. निकला, Come out. निकला। That is the message. वही संदेश है। Don't stay in such false church. ऐसे झूठे कलीसिया में मत रहना। They may talk about the name of Jesus. वो यीशु के नाम को बता सकते हैं, They may all claim to worship the Lord Jesus. और वो अपने आप को कह सकते हैं कि यीशु की आराधना करते हैं, But that is not the true gospel of grace. मगर वो सच्ची अनुग्रह की सुसमाचार नहीं है, That is the false gospel of grace. और वो अनुग्रह का झूठी शिक्षा है। To take away the message of the cross from the gospel of grace is false. और जो है शुभ संदेश से जो है परमेश्वर का क्रूस का वचन निकालना झूठा है। When you preach true grace, the cross is there. जब आप सच्ची अनुग्रह की बात करेंगे तो क्रूस वहां पर है। Psalms 85:10 says, भजन 85:10 कहता है, grace and truth came from the cross. अनुग्रह और सच्चाई क्रूस से निकला है। John chapter 1 verse 14 says, यूहन्ना पहला अध्याय 14 पद कहता है, the Lord Jesus came to bring grace and truth. प्रभु यीशु मसीह आए, अनुग्रह और सत्य को ले आए। On the cross, grace and truth manifested. क्रूस पर जो है अनुग्रह और सत्य प्रकट किया गया। You look at the life of the apostle Paul. प्रेरित पौलुस के जीवन को देखिए, No one preached so much of grace like him. उनके समान किसी ने भी अनुग्रह के विषय में और ज्यादा प्रचार नहीं किया है। But at the same time, all his life he was carrying the cross. साथ ही साथ जीवन भर वो क्रूस उठाते हुए चले। That is the true grace. और यही सच्चा अनुग्रह है। And I'm going to close by saying one more thing. एक और बात कह के मैं खत्म करने वाला हूँ। Do you remember I told you about the vision? I saw the ball of fire. आपको याद है एक आग के गोले के दर्शन के बारे में बताया? The Lord Jesus stood as a gigantic figure. और वहां पे यीशु एक विशाल स्वरूप में खड़े थे। On his right side and from his left side protruded out millions of saints. और उनके दाएं और बाएं तरफ में बहुत सारे संत लोग नजर आए। So from the far it will look like the shape of a cross. और दूर से देखने में एक क्रूस का एक चित्र के समान नजर आता है। And this ball of fire streaks across the universe coming towards the earth. और ये जो आग की गोला जो है ब्रह्मांड से निकलकर वो पृथ्वी तक आ रहा है। This is what the Lord Jesus meant when he said in Matthew chapter 25 verse 30 that you will see the sign
of the Son of Man. और यही बात यीशु मसीह ने जो मत्ती 25 अध्याय के 30 पद में कहता है कि आसमानों में चिन्ह को देखोगे। The cross is the sign. क्रूस ही वो निशाना है। Even at the second coming, the Lord Jesus comes in the sign of a cross. और यीशु के दूसरे आगमन में जो है क्रूस की उस चिन्ह के रूप में आता है। That is true grace. वो ही सच्चा अनुग्रह है। Okay, we need to wrap up today and we'll meet you next week. ठीक है, आज हमें खत्म करना है। हम अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे। God bless you. प्रभु आशीष दे। एन्जल टिभीका दार्जिलिङ एवं सिक्किमका प्रिय दर्शक वृन्द, अब तपाईले आफ्नो भेटी कालिम्पोङ जीसस मिनिस्ट्रिज कार्यालयमा पठाउनको निम्ति हाम्रा दार्जिलिङ अनि सिक्किमका प्रतिनिधिहरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो दार्जिलिङको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ पास्टर सरोज रोङ्गोङ, ठेगाना एजेसी बोस रोड, सर्किट हाउस, दार्जिलिङ 734101 पश्चिम बङ्गाल। सम्पर्क नम्बर 9851025098 9564371338। सिक्किमको निम्ति श्रीमती छोडेन लेप्चा मार्फत सुरेश छेत्री, छोजाङ भुटिया बिल्डिङ आरिथाङ स्कुल छेउ, गान्तोक सिक्किम 737101। सम्पर्क नम्बर 7797888563। तपाईले आफ्नो चेक और डिमान्ड ड्राफ्ट जीसस मिनिस्ट्रीज नाम गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यालयको ठेगाना यस प्रकार छ: जीसस मिनिस्ट्रीज, प्रेमताम रोड, मिस्टर कटेज, पोस्ट अफिस कालिम्पोङ 734301। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 035522555052। हाम्रो इमेल आईडी छ jmkpg@jesusministries.org। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।